Good evening, friends. Welcome to the channel, the Indian Bank Wala. In this video, we will be discussing the banking news of 21st of August 2022. This series is for Bank of India Credit Officer exam. It is focused towards interview preparation. Now, interview preparation has three parts. One is based upon your profile, your career ambitions, your work experience, your school, college, and your background. Now, another thing is related to the field of exam which you have cracked. For example, credit officer. So they will be asking you some ratios and repo rate and other banking related important terms. And the third and most important thing is about your opinions when the news which is the economic related news which is going on. So upon that the questions may be asked. More importantly, in group discussion it will be very much helpful. So let's just start. I have included only those important news which are relevant from the point of view of an employee per se who is working in bank, or a student who wants to join the Indian banking sector. So let's start. These will be a group of short videos. Don't forget to subscribe, like and share, and also press the bell icon because I'll be updating these news daily. So let's start. Now, first news is checking frauds pushing big ticket spending. Banks seek time bound data sharing from CEIB. Now, इसमें कह रहा है कि टू हेल्प कर्ब फ्रॉड्स इन द बैंकिंग सिस्टम लेंडर्स हैव वर्कड आउट अ 20-point स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन बोरोवर्स फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो. मतलब जो ग्रुप ऑफ लेंडर्स होते हैं जैसे SBI, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, तो ये एक 20-point स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड अबाउट द बोरोवर्स बिफोर दे सैंक्शन बिग टिकट लोन्स. फॉर एग्जांपल 200 करोड़ 300 करोड़ का जब कोई लोन बैंक सैंक्शन करता है तो उससे पहले वो जानना चाहता है कि बोरोवर की प्रोफाइल कैसी है. तो वो डेटा जो है वो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट से वो लेंगे. इसका प्लान चल रहा है. द मूव फॉर अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट, इसको एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में बनाया जाएगा ताकि वो सबके लिए आसान हो. हर बैंक अगर अपना अपना फॉर्मेट फॉलो करता है तो उसमें मुश्किल होती है. द मूव फॉर अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द डिले इन गेटिंग सच इंफॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. द लेंडर्स अंडर द एगीज ऑफ IBA, that is Indian Bank Association, will also push the finance ministry and the CEIB for digitizing the entire process of information exchange. तो एक इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के प्रोसेस को डिजिटाइज भी किया जाएगा और उसका काम जो है वो IBA उसको लीड करेगा. ओके. So according to the finance ministry guidelines on timely detection, reporting and investigation related to large value bank frauds, तो जो बैंकिंग में फ्रॉड्स होते हैं वो डेटा जो है कंपाइल करवाया जाएगा, उसको डिजिटाइज किया जाएगा सो दैट फ्रेश लोन के लिए जब कोई बोरोवर अप्रोच करता है बैंक को तो उसका डेटा CEIB से मिल पाए. According to the extant government guidelines, banks should also seek the CEIB report on the renewal of existing large credit facility and also non-performing assets accounts involving an amount of 50 crore and above. यानी कि अभी हमने जो बात की कि फ्रेश अकाउंट्स के लिए तो ठीक है करेंगे ही, है ना, लेकिन कोई आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट है, CC है, जिसको हर साल रिन्यू किया जा सकता है, उसके लिए भी बैंक CEIB से डेटा सीक करेगी. फॉर एग्जांपल SBI से कोई लोन है 60 करोड़ का, वो चल रहा है, लेकिन उसका कहीं और भी कोई एक लोन है और उसने यूनियन बैंक फॉर एग्जांपल में डिफ़ॉल्ट किया है, तो SBI को पता होना चाहिए कि उसने वहाँ किया है, भले ही हमारे यहाँ ठीक चल रहा है, बट दिस पार्टी has malignant intentions and they may also default in our loan, so it will be helpful. तो आप ये याद रखना, अमाउंट इज़ 50 करोड़ and above. Next is PSB branches get monthly target for doorstep banking. Now every branch of state-run banks in the country will have to entertain at least 3 requests for offering doorstep banking services per month until 2023 March. So ये चीज़ जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कस्टमर फर्स्ट पॉलिसी का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आदेश दिया गया है उसके तहत क्या है ये टारगेट सेट बाय PSB अलायंस.
तो ये जो PSB अलायंस है, इट इज़ अ कंपनी सेटअप बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इन्होंने टारगेट सेट किया है कि हर महीने हर ब्रांच पब्लिक सेक्टर बैंक की, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि 3 कस्टमर को डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस देगी अप टिल 2023 मार्च। क्यों? क्योंकि सो दैट विथस्टैंड फियर्स कंपटीशन फ्रॉम द प्राइवेट पीयर्स एंड टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, ऐसा उनका मोटिव है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डोर स्टेप बैंकिंग, is there anything new about doorstep banking which the banks have to follow? क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसे क्वेश्चन थे। एट माई टाइम there was something related to MSME. हाँ, yes, PSB loans in 59 minutes. So the government was mooting over those things, and that news was around 30 days before my interview, and the interviewer asked me about it. I couldn't answer it though, but then as soon as he said, he hinted me, I could answer it. So they ask such questions. So ये आप देख लेना। दूसरा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री allays worries on UPI charges, says providers may seek other means. तो अभी ये चल रहा है कि जो हमारा UPI है उस पर भी सर्विस चार्जेस लगाए जाएं, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं। After the RBI came out with a discussion paper last week on charges in payment systems, the Finance Ministry on Sunday clarified that there will be no consideration in the government to levy any charges to the UPI services, terming UPI service as digital public good. उन्होंने digital public good कहा है इसको, so there will be no levy of charges from the customers. The Finance Ministry stepped in on Sunday to clarify that the concern for the service providers for cost recovery have to be met through other means. ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं UPI के लिए, उनको जो कॉस्टिंग जाती है ना, तो उनकी भरपाई कौन करेगा अगर कस्टमर नहीं करेगा तो उनका कहना है फाइनेंस मिनिस्ट्री का अदर मीन्स। तो आगे बढ़ते क्या कहता है, UPI is a digital public good and immense convenience for public and productivity gains for the economy. There is no consideration in government to levy any charges for UPI. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. अब other means का क्या आंसर है ये अभी हमें नहीं पता, बट कुछ दिनों में शायद कोई नई न्यूज़ आएगी इससे रिलेटेड तो हमें पता चलेगा। बहरहाल इतना क्लियर है कि कस्टमर से इसका ऐसा नहीं लिया जाएगा। Next is regarding trade settlement. Government says banks free to not deal with sanctioned entities. Now this is related to Russia-Ukraine crisis. The center has told banks that they can exercise their commercial discretion and not deal with sanctioned entities, particularly in the case of Russia. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब बैंक्स को बोल दिया है कि आप फ्री हैं, आपको डील करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। अगर आपको ये लगता है कि अगर आप डील करेंगे सैंक्शन एंटिटीज़ के साथ, जैसे यूएस ने खुद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं और भी कुछ रिलेटेड पार्टीज़ पे लगाए हैं, और बैंक्स को ये खतरा है कि अगर उन्होंने उनके साथ वर्क किया तो उनके भी ऊपर भी सैंक्शन लग सकता है एंड इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर इंडियन नेशनल रुपी। ये आगे पढ़िए, देखिए थर्ड लाइन, वाइल सेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज़ पीपल अवेयर ऑफ मैटर सेट। Now banks have reached out to the government and RBI expressing their fear that rupee trade mechanism could result in economic sanctions on them by the West. West means US. Bankers had met top management officials in MEA on August 9 and conveyed their apprehensions about the mechanism. Now, during the discussions, the officials allayed their fears, stating they were free not to deal with entities transacting in sanctioned items. तो ये उनको फ्री हैंड दिया है। Indians remitted over 6 billion in Q1 of financial year 23 under liberalized remittance scheme, shows RBI data. Now Q1 financial year 23 means April 1st 2023 to 30th of June 2023. So आपको पता है ये LRS के बारे में आप देखना, इसमें कितना $2.5 मिलियन तक आप रेमिट कर सकता है एक इंसान, है ना। अब टोटल इंडिया में 6 बिलियन के ऊपर इन्होंने रेमिट किया है।
तो ये देखिए, RBI लिमिटेड रेमिटेंस स्कीम मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक इन द फर्स्ट क्वार्टर, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स एंड गिफ्ट्स। तो इंडिया से जो डॉलर बाहर गया है वो 3 मेन चीज़ों में गया है। वो है इंटरनेशनल ट्रैवल, लोगों ने ट्रैवल बहुत किया है इसका मतलब, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स एंड तीसरा है गिफ्ट। So this has shown nearly 64.75% jump from 3.67 billion in last quarter of the last similar quarter of the financial year, and now it is over 6 billion, है ना। And international travel contributed 2.92 billion, maintenance of close relatives from the second largest, and gift considered the third largest. So ये देख लेना आप। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लाइकली टू एग्जिस्ट RBI's PCA फ्रेमवर्क सून। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत अभी भी फंसा हुआ है, उसको दे मे कम आउट ऑफ द PCA। द बैंक हैज़ ऑलरेडी मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू द RBI बेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल पैरामीटर्स। अब देखो इसमें इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या होते हैं, PCA क्यों लगता है? 3 या 4 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, दूसरा होता है NPA का, एक NPA का थ्रेशोल्ड होता है कि इससे ज़्यादा हो गया तो PCA लग जाएगा। तीसरा होता है कैपिटल एसेट्स टू CARA परसेंटेज ना, बेसल में जो डिफाइंड है कि जैसे इंडिया में 9% है CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो अब किस चीज़ के लिए इस पे लगा था वो देखना होगा, ठीक है। अब ये फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, आपको इंटरव्यू में जब जाओगे तो ये फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। The RBI is looking at the bank's request and may take a view on this soon based on quantitative and qualitative parameters. तो मैंने आपको क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स बता दिए, अब आप क्वालिटेटिव पैरामीटर्स देख के चैट में आप टाइप कीजिएगा, ठीक है। तो आपका भी रिवीजन होगा और बाकी लोगों को भी हेल्प होगी। क्वांटिटेटिव बताए ना, प्रॉफिटेबिलिटी है ना, और क्या बताया मैंने, और आपको बताया NPA का रेशियो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर चला जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया CRAR। चौथा एक और होता है लेवरेज के बारे में बात करता है वो, ठीक है। और क्वालिटेटिव आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, India's CBDC rollout likely this fiscal with wholesale business. Now RBI is planning to introduce its central bank digital currency this fiscal year in phased manner. Fiscal year मतलब March 23 तक। Initially for the use only by wholesale business, ये याद रखना, this is important, only for wholesale business, and is designing its way that leaves no room for anonymity by its user. The central bank digital currency will be introduced for retail segments only after RBI examines its usage among wholesale business. तो इसके बारे में पहली बार बात कब हुई थी? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन announced it in the 2022 यूनियन बजट, एंड दिस विल गिव बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी, ऐसा इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसलिए इस पर वर्क किया जा रहा है। नाउ डिजिटल करेंसी विल ऑल्सो, मैं 4th लाइन फ्रॉम द लास्ट पढ़ रहा हूँ, digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by RBI starting 2023. तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आप फोकस कर लेना। ये एक इंडस्ट्री के रिलेटेड न्यूज़ है, नॉट डायरेक्टली लिंक टू बैंकिंग, बट अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप क्रेडिट ऑफिसर बनना चाह रहे हो तो आप लैंडिंग करोगे, तो आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। कॉटन यार्न मिल्स प्लानिंग टू स्टॉप प्रोडक्शन अमिड पुअर डिमांड यूक्रेन वॉर। अब ये कॉटन का देखिए, कॉटन यार्न मिल्स क्यों बंद कर रहे हैं लोग, बंद कर रहे हैं मतलब प्रोडक्शन क्यों रोक रहे हैं, इसके 2-3 रीज़न है इसमें दिया हुआ है। द राइज इन कॉटन प्राइसेस, पुअर डिमांड ऑफ यार्न ड्यू टू अपैरल इंडस्ट्री स्केलिंग डाउन प्रोडक्शन एंड इट्स ग्रोइंग स्टॉक पाइल have forced cotton yarn mills across the country to look at ceasing production. देखो कॉटन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पहली बात तो वो क्यों बढ़ रहे हैं उसका हम बाद में देखेंगे। पुअर डिमांड ऑफ यार्न, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है, ग्रोइंग स्टॉक पाइल इतना हो गया है कि उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, माल बिक नहीं रहा है, स्टोरेज हुए जा रहा है।
है ना। तो ये इस चक्कर में अब ये कह रहा है कॉटन प्राइसेस, फोर्थ लाइन, कॉटन प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय ओवर 60% इन अगस्त कंपेयर टू द सेम लास्ट ईयर। देखिए ये सब डिमांड एंड सप्लाई का काम होता है ना। अब कॉटन यार्न के लिए कॉटन जो है रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है तो आपको जो फिनिश गुड आप बना के भेजोगे कॉटन यार्न वो महंगा बिकेगा। अब वो आप महंगा करोगे तो वो आगे वाली पार्टी खरीद नहीं रही है, स्टॉक पाइल होता जा रहा है। यूक्रेन और रशिया के चक्कर में एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए हैं इनके, तो इट इज़ एक्टिंग एज अ डबल वैमी फ्रॉम डबल साइड, फ्रॉम बोथ द साइड्स, एंड दैट इज़ वाई these yarn companies are planning to shut down the operations for a while. Has been hit hard by dip in exports due to Russia Ukraine war। देखो यही लिखा है। अभी देखो ये लिखो, तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन हैज़ ऑलरेडी अर्ज्ड इट्स मेंबर टू स्टॉप प्रोडक्शन। अदर स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश आर ऑल्सो गोइंग टू आइदर गो फॉर कंप्लीट और पार्शियल शटडाउन। अभी ये देखो, रशियन बैंक्स लाइन अप फॉर कस्टमाइज्ड ट्रेड अकाउंट्स विद इंडियन लेंडर्स। Now, more than 15 Russian banks are in advanced talks with Indian lenders. Indian lenders mean Indian banks to facilitate bilateral business in their respective local currencies। ठीक है, अभी लोकल करेंसी में बात करने का जो है उनका प्लान चल रहा है, इसलिए दे आर इन टॉक्स bypassing the established trade mechanism led by US dollar and are working on building a bespoke reference exchange rate framework between the rupee and ruble। People familiar with the matter told ET। Now, Petersburg Social Commercial Bank, Zenith Bank and Tatsot Bank are among the Russian lenders likely to open these customized trade accounts with बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग देखो बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इट विल बी इम्पॉर्टेंट। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड यूको बैंक आर लाइकली टू बी लोकल पार्टनर्स ऑफ द लेंडर फ्रॉम मॉस्को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। बैंक्स आर एंड द रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स आर कंसिडरिंग सेटिंग अप अ कस्टमाइज्ड रेफरेंस मटेरियल exchange rates that will be announced daily by both RBI and the Central Bank of Russia। So that's all for today। बाकी की न्यूज़ हम जो है कल की न्यूज़ हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि ग्रुप में आप लोग जो है ना जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, वो आप डालते जाइए। जैसे ये वीडियो मैंने अभी डिस्कस किया, उसके बाद में डेली की जो क्वेरीज होंगी ना उस पर भी हम बात कर लिया करें।